Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Knowledge check, page number 160. State whether the following statements are true or false. First, an electric cell converts electrical energy into chemical energy. False. Second, the metal cap of a dry cell acts as the positive terminal. True. Third, button cells are used in mobile phones. False. Fourth, current always flow from positive terminal to the negative terminal. True. Fifth, an open circuit allows electric current to flow. False. Exercise A. Choose the correct option. First, dash is a small coil wire that glows in an electric bulb. A. Conductor. B. Filament. C. Switch. D. Circuit. Answer is B. Filament. Second, dash is a material that allows electric current to pass through it. A. Insulator. B. Conductor. C. Circuit. D. Switch. Answer is B. Conductor. Third, a path along which electric current flows is called dash. A. Cell. B. Battery. C. Circuit. D. Conductor. Answer is C. Circuit. Fourth, dash is a device used to stop and allow electric current to flow in an electric circuit. A. Filament. B. Cell. C. Switch. D. Circuit. Answer is C. Switch. Fifth, rubber coating used to cover metal wires acts as dash. A. Conductor. B. Insulator. C. Switch. D. Negative charge. Answer is B. Insulator. Exercise B. Fill in the blanks. First, materials that allow electric current to pass through them are called dash. Material that allow electric current to pass through them are called conductors. ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं उसे कंडक्टर्स कहा जाता है. सेकेंड, व्हेन वी टर्न द स्विच ऑन द सर्किट इज डैश. व्हेन वी टर्न द स्विच ऑन द सर्किट इज क्लोज्ड. जब हम स्विच ऑन करेंगे तो सर्किट क्लोज होगा. थर्ड, current in an electric circuit always flows from dash to dash terminal. Current in an electric circuit always flow from positive to negative terminal. इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो होता है. फोर्थ, करंट डज नॉट फ्लो इन डैश सर्किट. करंट डज नॉट फ्लो इन ओपन सर्किट. ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है. फिफ्थ, प्लास्टिक एंड रबर आर एग्जाम्पल ऑफ डैश. प्लास्टिक एंड रबर आर एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर्स. प्लास्टिक और रबर इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल हैं. एक्सरसाइज डी. State whether the following statements are true or false. First, a conductor does not allow the current to flow through it. False. Second, an insulator such as aluminium does not allow the current to flow through it. False. Third, an electric bulb opens or closes the circuit. False. Fourth, two cells connected end to end form a battery.
True. Fifth, the wires in the bulb react to glow. False. Exercise E. Match the following. First, wood. Answer is D. Insulator. Second, tungsten. Answer is C. Filament. Third, reflector. Answer is E. Torch. Fourth, iron. Answer is A. Conductor. Fifth, argon. Answer is B. Filled in bulb. Exercise F. Give reason for each of the following. First, the arrows shown in the following circuit need to be in specific direction. जो नीचे सर्किट दिया गया है वो जिसमें जो एरो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन उसमें ज़रूरी है. क्यों बताइए. आंसर, द एरोज शोन इन अ सर्किट नीड टू बी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन बिकॉज करंट फ्लो ओनली फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी. इलेक्ट्रिक सर्किट में एरो शो करता है कि जो करंट है वह हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो होता है, सेल में या बैटरी में. सेकेंड, द बल्ब्स इन द फर्स्ट सर्किट विल ग्लो लेस ब्राइटली देन इन द सेकेंड वन. जो आपको दो सर्किट दिए गए हैं उसमें से फर्स्ट सर्किट का बल्ब थोड़ा कम ग्लो करता है सेकेंड से. क्यों. आंसर, in the first circuit only one cell is connected whereas in second circuit two cells are connected which produce more current. Due to this reason bulb in the second circuit glows brighter than in the first circuit. First circuit में only one cell connect है जबकि second circuit में दो cell connect हैं जो कि ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए सेकेंड सर्किट का बल्ब ज़्यादा ग्लो करता है फर्स्ट सर्किट से. थर्ड, द बल्ब ग्लोज ओनली इन द थर्ड केस एंड नॉट इन फर्स्ट टू केसेस. जो आपको 3 डायग्राम बताए गए हैं उसमें से थर्ड केस में का ही बल्ब ग्लो करता है, बाकी के फर्स्ट और सेकेंड ग्लो नहीं करते हैं. क्यों. आंसर, in the first case circuit is broken. In the second case there is no bulb. In the third case circuit is complete. Hence bulb glow in third case only. फर्स्ट केस में आप देखोगे कि सर्किट ब्रोकन है, सेकंड केस में बल्ब ही नहीं है, सेकंड केस में सेल नहीं है और थर्ड केस में सर्किट कंप्लीट है, इसलिए थर्ड केस का बल्ब ग्लो करता है. फोर्थ, व्हेन नॉट इन यूज सेल्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम डिवाइस सच एज टॉर्च एंड कैमरा. जब हमें डिवाइस यूज़ नहीं करना हो तब हमें उसमें से सेल को रिमूव कर देना चाहिए, जैसे कि टॉर्च, कैमरे में से. क्यों. आंसर, when not in use the cell should be removed from the device such as torch, camera, transistor and radio to avoid the leakage of the cells. हमें डिवाइस में से जैसे टॉर्च, कैमरे में से सेल को निकाल देना चाहिए जब हम उसका यूज़ न करें, क्योंकि इसमें सेल का लीकेज नहीं होता है. फिफ्थ, आर्गन गैस इज़ यूज टू फिल एन इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब में आर्गन गैस फिल की जाती है. क्यों. आंसर, द स्पेस बिटवीन द फिलामेंट एंड द ग्लास कवरिंग इज फिल्ड विथ आर्गन गैस. इट इज़ एन इनर्ट गैस सो इट इज डज नॉट रिएक्ट इजीली विद द टंगस्टन मेटल एट हाई टेम्परेचर. फिलामेंट और ग्लास कवरिंग में आर्गन गैस फिल की जाती है क्योंकि यह एक इनर्ट गैस है, यह इजीली रिएक्ट नहीं करती है टंगस्टन मेटल के साथ हाई टेम्परेचर में. एक्सरसाइज
G. Name the following. First, a device that converts chemical energy into electrical energy. ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. आंसर इज सेल. सेकेंड, द एंड ऑफ द सेल फ्रॉम वेयर करंट फ्लो. सेल का ऐसा एंड कौन सा है जहाँ से करंट फ्लो होती है. आंसर इज पॉजिटिव टर्मिनल. थर्ड, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट. ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट और हीट में कन्वर्ट करता है. आंसर इज बल्ब. फोर्थ, द कंप्लीट पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो. कंप्लीट पाथ जहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं कौन सा है. आंसर इज इलेक्ट्रिक सर्किट. फिफ्थ, मटीरियल दैट डू नॉट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू दैम. मटीरियल जिसमें से करंट फ्लो नहीं होती है उसे क्या कहते हैं. आंसर इज इंसुलेटर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस और वन वर्ड. फर्स्ट, नेम द मटीरियल यूज टू मेक नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ ड्राई सेल. ड्राई सेल में नेगेटिव टर्मिनल में कौन सा मटीरियल यूज होता है. आंसर इज कार्बन रॉड. सेकेंड, how electricity generated at power stations is transmitted to homes and offices. पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है अपने घरों में और ऑफिस से कैसे. आंसर, द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन पावर स्टेशंस इज ट्रांसमिटेड थ्रू केबल्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू आवर होम्स, ऑफिस एंड अदर प्लेसेस. पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है केबल के द्वारा और हमारे घरों में, ऑफिस में और अदर प्लेसेस में ट्रांसपोर्ट होती है. थर्ड, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब के द्वारा कौन सी एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट और लाइट में. आंसर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. फोर्थ, name the device used to stop or allow flow of current through a circuit. ऐसा कौन सा डिवाइस है जो सर्किट में करंट फ्लो करने में स्टॉप करता है और अलाउ करता है. आंसर इज इलेक्ट्रिक स्विच. फिफ्थ, व्हाट आर द सिंबल्स यूज टू ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम कॉल्ड. सर्किट डायग्राम में जो सिंबल यूज होते हैं उसे क्या कहते हैं. आंसर, सर्किट सिंबल्स.